Hi everyone, good morning. Hello, good morning. Am I audible and visible, Komalji? Yes. Okay. Okay. Subhan Kavita. We'll start the session after few minutes. Till then, everyone sit comfortably. किसी भी आसान ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे. Hello Durga ji, good morning. हाँ पापा जी। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए. मैम मैं थोड़ा किचन में हूँ। वीडियो थोड़ा स्टॉप नहीं था। सॉरी दुर्गा जी, आपने कुछ बोला? हाँ मैम, मैं थोड़ा किचन में वर्क है, मैं वीडियो थोड़ा स्टॉप कर दूंगी। कोई बात नहीं, आज का सेशन जो है उसमें स्लाइड्स चलेंगी, तो आप सभी को स्लाइड दिख रही है ना, फर्स्ट स्लाइड? यस मैम। ठीक है ना. तो आप वीडियो अगर ऑफ भी करते हो कोई बात नहीं, यू कैन लिसन अलोंग एंड एवरी वन कैन कीप अ नोटबुक और पेन हैंडी. मे बी यू वॉन्ट टू राइट डाउन समथिंग, और जो भी क्वेश्चंस अगर आपको पूछने हो तो आप क्वेश्चंस आप राइट डाउन कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क दैट एट द एंड ऑफ द सेशन. ओके. सो फर्स्ट स्लाइड इज़ विजिबल टू ऑल, राइट कोमल जी? ठीक है ना? ओके, विल स्टार्ट अवर सेशन आफ्टर 2-3 minutes. अभी है टाइम 10:30 होने में. Till then, you can make adjustment according to your comfort. Hello, Minal ji. Hello, Anita ji. Ma'am, there won't be face yoga session. I won't be taking that today, but there will be a face yoga session. आज के session मैं नहीं लूँगी बस. Maybe this session goes little longer than 11, so that's why. Okay. चलिए, let's start with the prayer. Everyone, sit comfortably. Roll your shoulders back. Close your eyes. Keep your spine straight. Take in deep breath. Inhale. And exhale. Continue deep breathing. And now, to start our class on a positive note, together we will chant one time Om. Breathe in deeply. Inhale and exhale. Gently bring your both palm in front of your chest. Roll your head down. दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे. Place your both palms over your eyes, your forehead, your neck, your chest, lower back. Namaskaram, good morning to all. I hope you all are doing well. Welcome to Always Live Yoga. So, before we start, I'll like to introduce myself. I am Anjali Negi and I have been teaching on I Always Live Yoga since past 4 years, and I am certified yoga trainer
and I have done masters in yoga as presented in a slide, and currently I am doing pre and postnatal Garbha Sanskara course. So all the things which I have put into the presentations are on the basis of whatever knowledge I have gained from my teachers and gurus. So let's start with today's session. Everyone, sit comfortably. You might require a pen or copy. You can keep it handy along with you. So, okay, I hope everyone is ready. The slide is visible to all, right? Give me a thumbs up. Okay. So, namaste everyone. I am really grateful for this opportunity to share something very close to my heart, which is seed cycling. आज हम एक नेचुरल, अफोर्डेबल और पावरफुल मेथड के बारे में बात करेंगे दैट सपोर्ट्स हार्मोनल बैलेंस नेचुरली. एज विमेन हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं. इट गोज़ थ्रू हाइज एंड लोज and many of us experience painful periods, mood swings, PCOS symptoms, acne और irregular cycles. मुझे भी इनमें से कुछ challenges हुए हैं and seed cycling helped me to align with my cycle in a natural way. So, seed cycling का थोड़ा सा introduction मैं बता देती हूँ. Seed cycling is a natural way to support our hormonal balance through your menstrual cycle using flax, pumpkin, sesame and sunflower seed. इसमें हम basically 4 seeds का use कर सकते हैं. If you want, you can write it down. Flax, pumpkin, sesame and sunflower seeds. इट्स सिंपल, सिर्फ 4 सीड्स, लेकिन करेक्ट टाइमिंग और कंसिस्टेंसी के साथ दे हेल्प अस सिंक विद आवर बॉडीज रिदम. आज के सेशन में वी विल एक्सप्लोर व्हाट इज सीड साइक्लिंग, साइंस एंड आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव बिहाइंड इट, हाउ टू डू इट प्रैक्टिकली, एंड PCOS के पर्सपेक्टिव से भी हम इसे देखेंगे. एंड एंड में मैं थोड़ा सा अपना एक पर्सनल रूटीन भी आपको शेयर कर दूंगी, हाउ आई टेक इट. सो जो हमारा सीड साइक्लिंग है वो हमें किस किस चीज़ में हेल्प कर सकता है. सीड साइक्लिंग हेल्प करता है इरेगुलर पीरियड्स में, PCOS में. समवन्स माइक इज़ ऑन आई गेस. ओके, एवरीवन कीप द माइक्स ऑफ. ओके, चलिए सभी का अभी ऑफ है. ओके, सो PCOS में पहले PCOS को PCOD बोलते थे, बट इट्स नॉट अ डिसऑर्डर, इट्स अ सिंड्रोम. सो अभी इसको PCOS बोलते हैं. हार्मोनल इम्बैलेंस में, PMS में, पेरीमेनोपॉज में, फर्टिलिटी इश्यूज़ में. पेरीमेनोपॉज इज़ अ टाइम बिफोर मेनोपॉज, जब आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं मेनोपॉज के. इट अकर्स मोस्टली अराउंड द एज ऑफ 39 to 45 के बिटवीन, जो थोड़े से चेंजेस आते हैं बॉडी में. सो इन सभी कंडीशंस में आपको सीड साइक्लिंग हेल्प करता है. सो द साइंस बिहाइंड सीड साइक्लिंग, जो हम सबसे पहले बिफोर डाइविंग इनटू द सीड साइक्लिंग, जो हम इसे अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ सिंक करके करते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं. सो बेसिकली द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ डिवाइडेड इनटू 2 phases, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूथल फेज. फॉलिकुलर फेज जिनको नहीं पता है दे कैन राइट इट डाउन. फर्स्ट फॉलिकुलर फेज जो है हमारा Day 1 ऑफ आवर पीरियड का जो पहला दिन होता है, उस दिन से लेके 14th डे तक आपका फॉलिकुलर फेज होता है. ल्यूथल फेज इज फ्रॉम द Day 15 to 28, विच बिगिनस आफ्टर ओव्यूलेशन, राइट. सो दैट इज़ द ल्यूथल फेज, आपकी पीरियड स्टार्ट होने के Day 15 से 28 तक. Each phase is regulated and dominated by different hormones that fluctuate naturally. सो जो फॉलिकुलर फेज़ है, इस फेज़ में जो हमारा हार्मोन होता है जो डोमिनेट करता है, दैट इज़ एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, ये हमारी यूट्रिन लाइनिंग को ग्रो करने में हेल्प करता है. इट्स अ ग्रोइंग हार्मोन बेसिकली.
और हमारी स्किन को ग्लोई बनाता है, बॉडी को एनर्जेटिक बनाता है, और हमारे मूड को इम्प्रूव करता है, ऑल्सो द कॉग्निटिव शार्पनेस ऑल्सो। तो अब तभी आप कभी आपने अगर नेचुरली फील करा हो, पीरियड्स जैसे ही शुरू होते हैं उसके कुछ दिनों बाद, बाय द टाइम योर पीरियड्स एंड, आपको खुद ही थोड़ा एनर्जेटिक, थोड़ा सा मूड में थोड़ा सा बूस्ट आपको लगता है, थोड़ा अच्छा अच्छा फील होता है। सो एस्ट्रोजन इज़ लाइक योर बेस्ट फ्रेंड, राइट? सो एस्ट्रोजन एक ग्रोथ हार्मोन होता है, ये आपके यूट्रस की लाइनिंग को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए, जो और आपको एक फ्रेश वाइब्रेंट फीलिंग देता है। इन दिस फेज वी ईट फ्लैक्स सीड्स एंड पम्पकिन सीड। दे आर रिच इन लिग्नेंस, फाइटोएस्ट्रोजन्स। फाइटोएस्ट्रोजन्स क्या होता है? फाइटोएस्ट्रोजन्स ये वो होता है जो आपकी एस्ट्रोजन को रेगुलेट करता है, ना ज़्यादा होने देता है ना कम होने देता है, ठीक है? फ्लैक्स सीड्स एंड पम्पकिन सीड हम इस फेज़ में लेते हैं। दे बैलेंस एस्ट्रोजन लेवल्स, नॉट टू हाई नॉट टू लो। यू कैन राइट इट डाउन. Okay, going forward to the luteal phase. If there are any question regarding at any slide, so आप उस question को लिख सकते हैं side में in a question column and you can ask it in the end of the session. Okay. तो दूसरा फेज़ जो है ल्यूथल फेज़, ये फेज़ स्टार्ट होता है हमारा डे 15 से 28 तक, राइट आफ्टर आवर ओव्यूलेशन। पीरियड स्टार्ट होने के डे 1 से आपका धीरे धीरे एस्ट्रोजन की वजह से आपका एग मैच्योर होता है, एंड एग मैच्योर्स बाय द डे 14, एंड 14th डे को आपका एग रिलीज़ होता है। सो पीपल हु आर ट्राइंग टू कंसीव कैन ट्राई दिस डेट, एंड यू अगर एडवाइस भी लिया है डॉक्टर का तो, और कई लोगों को पता भी होगा डे 14th और इसके अराउंड जो दिन होते हैं, दैट आर द डेट्स विच आर लाइक हाई, विच यू हैव द हाई चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेगनेंट. सो पीपल हु आर ट्राइंग टू डू दैट कैन ट्राई दीज डेट्स. अब हम चाहते हैं ल्यूथल फेज़ में. तो ल्यूथल फेज़ में जो होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारा डोमिनेट करता है. इसका काम क्या होता है? ये हमारे यूट्रिन लाइनिंग को मेंटेन करता है, बॉडी को काम रखता है, हमारे स्लीप और मूड को इम्प्रूव करता है और सपोर्ट करता है. ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन धीरे धीरे बढ़ता है. ये हार्मोन आपको काम, सेंटर, इमोशनली बैलेंस रखता है. अगर कॉन्सेप्शन ना हो, प्रेगनेंसी ना हो, तो प्रोजेस्टेरोन लेवल फिर गिरना शुरू हो जाते हैं, एंड बाय द टाइम दे स्टार्ट्स ड्रॉपिंग टू द एंड. उस दिन के बाद आपको पीरियड स्टार्ट होते हैं, है ना, जब ये पूरे गिर जाते हैं. दैट्स वाई वी ईट सनफ्लावर सीड एंड सेसमे सीड्स इन दिस फेज़. इस फेज़ में हम डे 15 से 28 तक, जब तक आपके पीरियड स्टार्ट नहीं होते हैं, उस दिन तक हम सनफ्लावर और सेसमे सीड्स लेते हैं. They support liver detoxification and help progesterone function effectively. Alright, together these seeds provide the right micronutrients, healthy fats, and hormone balancing compounds that sync with your body rhythm. Chaliye, now these are the seed. Flax seeds are अलसी के बीज, जिन्हें हिंदी में जानना है. फ्लैक्स सीड्स ब्राउन वाले हैं, अलसी. पम्पकिन सीड कद्दू के बीज. सनफ्लावर आपको 2 टाइप के मिलेंगे, इंडिया में मेजरली वाइट वाला आपको दिखेगा, एंड दूसरा है सेसमे सीड. ये 2 टाइप के होते हैं, ब्लैक एंड वाइट. तो जो लोग आयरन की डेफिशिएंसी विमेंस में काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से भी काफ़ी सारे आपको सिम्टम्स देखने को बॉडी में मिलते हैं, जैसे कि हेयर फॉल, लो हीमोग्लोबिन और काफ़ी सारी चीज़ें, तो आप उस टाइम पे ब्लैक सेसमे सीड्स को अगर लेते हैं, दैट आर गुड. ठीक है. सो थोड़ा सा इसके पीछे का साइंस के साथ ही आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव भी मैं बताना चाहूँगी. आयुर्वेद क्या कहता है कि जो एक विमेन की बॉडी होती है, एक महिला का जो शरीर होता है, दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ प्रकृति. जैसे हमारी प्रकृति में, इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, समर्स, मानसून, ऑटम, विंटर, वैसी हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं. इट्स very majestic and God has given a beautiful gift and this body.
एंड उसी के साथ गॉड हैज़ ऑल्सो गिवन अस द सल्यूशंस टू रेगुलेट दीज चेंजेस वेरी इफेक्टिवली थ्रू द नेचर ओनली। तो ऋतुचर्या की तरह ही हमारे शरीर में भी ये धीरे धीरे चेंजेस आते हैं जो हमारे शरीर के आंतरिक ऋतुचर्या होते हैं। फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड जो होते हैं इनका नेचर थोड़ा कूलिंग होता है, क्योंकि फॉलिकुलर फेज में डे 1 से 14 में पित्त, 3 दोष होते हैं आयुर्वेद में, त्रिदोष जिसको बोलते हैं। अगर जिनको नॉलेज नहीं है, दीज आर द दोषा। दोषा डजंट मीन कि ये हमारी बॉडी के लिए गलत चीज़ है। इन दोषों में जब इम्बैलेंस आता है तो बॉडी में दिक्कतें आती हैं। सबके अंदर 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। वात इज डोमिनेटेड बाय एयर एंड पित्त इज डोमिनेटेड बाय फायर एंड कफ इज डोमिनेटेड बाय वाटर, है ना। तो जो हमारा फॉलिकुलर फेज होता है इस टाइम में पित्त काफ़ी बढ़ता है बॉडी में, है ना, फायर थोड़ा बढ़ती है। तो फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड जो हैं ये कूलिंग होते हैं, शीतल होते हैं नेचर में। तो उस टाइम पे अगर आप इनको लेते हैं तो ये बॉडी की उष्णा को, वार्मथ को कम करने के लिए काफ़ी बॉडी के हाँ, वो उष्णा को कम करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। दूसरा, जब हम ल्यूथल फेज में एंटर करते हैं तब बॉडी में वात इम्बैलेंस होते हैं। वात इम्बैलेंस नॉट ओनली द, मैंने कई बार अपनी क्लासेस में भी मेंशन करा है, आफ्टर द एज ऑफ 50 बॉडी में वात इम्बैलेंसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो जिनको अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं भी है, दोज हु हैव पास द फेज ऑफ मेनोपॉज, वो लोग भी सीड साइकिलिंग के थ्रू जो बॉडी में अब बचे कुचे थोड़े से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हैं उनको हेल्प कर सकते हैं रेगुलेट करने में थ्रू द सीड साइकिलिंग। इट्स नॉट ओनली फॉर जस्ट द मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन, इट्स फॉर एवरीवन, ठीक है। तो सेसमे और सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं ये थोड़े वार्मिंग होते हैं, इनका प्रॉपर्टी जो होता है, तो ये आइडियल होते हैं हमारी बॉडी की उष्णा को, वार्मथ को कम करने के लिए, वात को रेगुलेट करने में। तो इस टाइम पे हम इसलिए सेसमे और सनफ्लावर सीड्स का कंजप्शन करते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू कैन राइट इट डाउन। हार्मोन इम्बैलेंस इज ऑफन सीन एज द रिजल्ट ऑफ अग्नि मध्य। What is अग्नि मध्य? अग्नि मध्य इज़ अ लो डाइजेस्टिव फायर, जिनका डाइजेशन स्लो रहता है ना। चाहे आप बॉडी में कितना भी अच्छा अच्छा खा लो, बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें डाल लो, आप कुछ भी बाहर का नहीं खा रहे हो, पूरा अच्छे से अपनी हर डाइट इनटेक कर रहे हो, बट तब भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे। क्यों? अग्नि मध्य की वजह से। अग्नि मध्य जिनका डाइजेस्टिव फायर ही प्रॉपर नहीं है, तो वो जितना भी आप बॉडी में डाल रहे हो, इट्स सिमिलर टू अ डस्टबिन। आप डाल रहे हो, यू आर जस्ट डंपिंग इट एंड इट इज़ गेटिंग एक्सट्रैक्टेड आउट नेक्स्ट डे, राइट। सो जो ये लो डाइजेस्टिव फायर है, इसको इग्नाइट करने के लिए जो हम सीड साइक्लिंग करते हैं, इसके साथ आप सीजनल अवेयरनेस, दीपन पाचन हर्ब्स, दीपन पाचन हर्ब्स इज़ लाइक द डाइजेस्टिव हर्ब्स विच यू कैन इनटेक विद दैट। दीपन पाचन हर्ब्स में आते हैं जीरा, अजवाइन, सौंफ। इवन यू हैव ऑल्सो सीन दैट दोज हु हैव बीन थ्रू द प्रेगनेंसी के बाद लेडीज़ को अजवाइन का पानी पीने के लिए बोलते हैं, सौंफ का पानी पीने के लिए बोलते हैं। वो इसीलिए बोलते हैं जो उनकी मध्य अग्नि होगी है अभी, उसको थोड़ा सा वो इम्प्रूव कर पाएँ, डाइजेशन अच्छा कर पाएँ। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका सिंपल तरीका है, जीरा, अजवाइन, सौंफ तीनों ही डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। सीज़न के हिसाब से, जैसे अजवाइन थोड़ा गर्म होता है, उस टाइम पे आप सौंफ का, समर्स में सौंफ का कंजप्शन कर सकते हैं। रात को सौंफ का पानी उबाल लिया 1 गिलास, सुबह पहले वो पिया, फिर आधा घंटे बाद सीड साइक्लिंग के जो आपके सीड्स हैं वो ले लिए। दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू दैट, है ना। सीज़न के हिसाब से अपना पानी चेंज करा एंड इट एनहांसेस द एब्जॉर्प्शन। आयुर्वेदा ऑल्सो emphasizes टाइमिंग एंड माइंडफुल ईटिंग। सो जो आप सीड्स खाते हो वो इंटेंशन और ग्रैटिट्यूड के साथ जब आप लेते हो, दे वर्क मैजिकली, दे वर्क इवन बेटर। इंटेंशन और ग्रैटिट्यूड क्या है? इंटेंशन ये है कि दीज आर नॉट जस्ट द सिंपल सीड्स विच यू आर इनटेकिंग, बट दे आर लाइक अ मेडिसिन टू यू। जब भी आप दवाई खाते हो तो इस भाव के साथ खाते हो ना कि आप खा रहे हो, ये आपको ठीक कर रही है। तो जिसके अंदर भी अगर कुछ भी नहीं है, अगर आपको प्रॉब्लम, दीज आर नरिशिंग यू, है ना। ग्रैटिट्यूड क्या होना चाहिए कि सोर्सेज जहाँ जहाँ से ये मेरे पास आए हैं उनके प्रति ग्रैटिट्यूड की, आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल दैट आई एम हैविंग दिस राइट नाउ एंड इट्स हीलिंग मी फ्रॉम इनसाइड,
है ना। तो इस इंटेंशन और ग्रैटिट्यूड के साथ अगर आप कोई भी चीज़ लेते हो विथ करेक्ट टाइमिंग, करेक्ट सीजनल वो डाइजेस्टिव सपोर्टिंग एलिमेंट्स, दैट्स वे दैट विल वर्क ऑन योर बॉडी मैजिकली। सो अब हम आगे बढ़ते हैं सीड साइकिलिंग चार्ट की तरफ। सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जो चाहते हैं फ़ोटो लेना फ़ोटो ले सकते हैं। ओके, यहाँ तक हमने जो बात करी है दैट इज़ फॉर द पीपल हु हैव रेगुलर साइकिल, जिनका डे 1 से डे 28 या 30 डे तक का साइकिल चलता है। पहले दिन पीरियड हुआ 28 डे में, फिर दूसरा पीरियड या 30 या 31 को आपको दूसरा पीरियड आ जाता है। दैट इज़ द लेंथ ऑफ नॉर्मल पीरियड। 32 इज़ द मैक्स। 32 के अगर आपका पार जा रहा है, यू कम इन द कैटेगरी ऑफ द इरेगुलर पीरियड, है ना। या फिर आपका पीरियड 20 डे से पहले आ जा रहा है, 20 डे से पहले आ जा रहा है लास्ट पीरियड ख़त्म होने के। सो फॉर PCOS और irregular पीरियड हमें क्या करना चाहिए? Can I do seed cycling if my periods are irregular? Yes, you can. Use the moon cycle as your guide. Moon cycle क्या है? Moon cycle you can search it today on a Google, जिनको है PCOS और irregular cycle, कि न्यू मून का पहला दिन कौन सा है, उस दिन से आपको फर्स्ट डे को लेना है। दैट इज़ योर डे 1 टू स्टार्ट सीड साइक्लिंग। डे 1 में क्या लेना है? फ्लैक्स पम्पकिन, ठीक है। टिल डे 15, जिस दिन फुल मून होगा उस दिन से आपका दूसरा फेज शुरू हो जाएगा, दैट इज़ ऑफ सनफ्लावर एंड सेसमे सीड्स। रोटेट दीज सीड्स एवरी 14 days. इट हेल्प्स योर बॉडी टू फाइंड अ नेचुरल रिदम ओवर टाइम। और हार्मोन्स जो हैं जो डिसरेगुलेटेड हैं वो धीरे धीरे, टाइम लगेगा, कितना टाइम? गिव योर सेल्फ 90 days, उसके बाद आप रिजल्ट्स मेरे को बताना कैसा लगा, ठीक है। Seed cycling is a gentle, natural way to support your hormone balance. No medicine needed, just consistency. Don't stress about being perfect. Your body appreciates the effort. सिर्फ आपको थोड़े से efforts लगाने हैं यहाँ पे। अब जिनको मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं, जो कि मेनोपॉजल सिम्टम्स से गुजर रहे हैं, आफ्टर द एज ऑफ 38, 39, you get those. Absolutely, it may reduce symptoms like hot flashes, night sweats, mood changes और fatigue. ये क्यों होते हैं? क्योंकि जो हॉर्मोन्स का जो लेवल है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है बॉडी में जैसे जैसे आप मेनोपॉज के नज़दीक जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि सीड्स प्रोवाइड फाइटो एस्ट्रोजन। फाइटो एस्ट्रोजन क्या है? अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन है या फिर बहुत कम एस्ट्रोजन है, उसको रेगुलेट करते हैं ये सारे सीड्स। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सपोर्ट करता है। फ्लैक्स सीड्स बेसिकली फाइटो एस्ट्रोजन में रिच होता है। सपोर्ट्स हेल्दी एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म, में एलिवेट योर लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल। तो ट्राई इट, गिव इट अ ट्राई टू डू सीड साइक्लिंग। और दूसरा, अब हम बढ़ते हैं आगे, सीड्स कैसे लेने हैं, सोक्ड या अनसोक्ड। तो काफ़ी लोग ऑलरेडी सीड्स ले भी रहे होंगे, कई उनको ड्राई रोस्ट करते हैं, विच इज़ अ रॉन्ग वे टू टेक सीड्स, बिकॉज आप जब उनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करते हो तो उनका जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं, वो ख़त्म हो जाते हैं हीट की वजह से। सो यू मस्ट टेक बेस्ट वेज टू टेक द सीड सोक्ड। सोक्ड अगर आप लेते हैं तो एंटी न्यूट्रिएंट्स जो फाइटिक एसिड और टैनिन्स होते हैं, दैट इज़ प्रेजेंट इन ऑल सीड्स एंड लेग्यूम्स। दाल आप लेते हो तो दाल भिगो के क्यों लेते हैं? ताकि उसमें जो उसका एब्जॉर्प्शन है बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, है ना, जो उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाए। तो दाल, चावल और जितने भी सीड्स होते हैं अगर आप भिगो के लेते हैं, दैट आर द बेस्ट वे टू इनटेक देम। डाइजेशन को बेटर करता है क्योंकि टेक्सचर सॉफ्ट हो जाता है, तो ब्रेक डाउन अच्छे से होता है स्टमक में। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, लाइक मिनरल, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम। एंजाइम एक्टिविटी जो आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है उसको इंक्रीज़ करता है सोक सीड। और ऑफ कोर्स जो टेक्सचर और टेस्ट है वो थोड़ा स्मूथ और सॉफ्ट हो जाता है। और इसी का जो कॉन्ट्रडिक्टरी है वो अनसोक्ड सीड का है। आप देख सकते हैं, एवरीथिंग इज़ रिटन डाउन। If you want to take screenshot, you can do that too. Okay.
Okay, so I'll share my personal routine now, how I take them. तो मैं खुद जो पर्सनली सीड साइकिलिंग कर रही हूँ, आई हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम पास्ट 3 मंथ्स. सो 3 मंथ्स में जो जो मैंने चेंजेस देखे हैं इन माई हेयर्स एंड स्किन एंड क्रैम्प्स में जो देखा है मैंने, यूजुअली आई डोंट फील दैट पेन, बट फर्स्ट और सेकेंड डे में थोड़ा सा इंटेंसिटी रहती है पेन की पीरियड्स के दौरान. तो दैट हैज़ बीन रिड्यूस टू अ सिग्निफिकेंट लेवल्स. एंड ऑल्सो जो हेयर फॉल का इशू मुझे काफ़ी टाइम से है, तो उसमें भी मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा है. छोटे छोटे बेबी हेयर्स देखे हैं. और ब्लैक सेसमे सीड्स आर गुड फॉर ग्रेइंग ऑल्सो, जिनके बाल सफ़ेद होते हैं. मेरे भी बचपन से जब मैं 14 या 15 साल की थी, तब से बाल थोड़े थोड़े सफ़ेद ग्रेइंग आनी शुरू हो गई थी बिकॉज ऑफ लो विटामिन B12. सो वो भी अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है. मैंने देखा है रूट्स आर ब्लैक, फिर उसके बाद वाला हिस्सा इज़ वाइट. सो दैट आई एम सीइंग. एंड स्किन थोड़ा सा एक्ने का प्रॉब्लम मुझे हुआ था बीच में पिछले साल. सो दैट क्लियर्ड अप. समवन्स माइक इज़ ऑन आई गेस. रचना जी, ठीक है, म्यूट हो गया. ओके, सो दैट आर द चेंजेस. तो मैं कैसे लेती हूँ, व्हाट आई डू, पम्पकिन और फ्लैक्स सीड्स में क्या है, फ्लैक्स सीड्स जब आप भिगोते हैं तो थोड़े से जेली जेली सी कंसिस्टेंसी हो जाती है, तो उसको वो ऐसे नहीं लिए जाते ना, उसे हम च्यू कर सकते हैं. सो व्हाट आई डू, पम्पकिन और फ्लैक्स सीड्स को आई सोक देम ओवरनाइट टुगेदर इन अ वन वेसल. एक ही बर्तन में उसे सोक करके रखा. फिर नेक्स्ट डे ग्राइंडर में डाला, एक बनाना डाला और उसको पी लिया. जो अपना पानी पीने के बाद आधे घंटे बाद उसको पी लिया. ठीक है, दैट इज़ द बेस्ट वे एंड ईजिएस्ट वे टू टेक इट. एंड सनफ्लावर और सेसमे सीड्स आर च्यूएबल. उनको क्या करती हूँ मैं, एक ही वेसल में लेती हूँ मैं. पानी कितना भरना है, सीड से 1 या 2 इंच ऊपर तक, उतना बहुत होता है, ज़्यादा वो क्योंकि फूलते नहीं है. सो व्हाट आई डू, पहले पहले जब मैं चम्मच से उसे लेती थी, दैट इज़ अ पर्सनल थिंग आई एम शेयरिंग, तो वो पूरे नहीं आ पाते थे. सेसमे सीड्स ना चिपक जाते हैं. सनफ्लावर तो थोड़ा बड़ा होता है तो वो नहीं चिपकता है, बट सेसमे चिपक जाते हैं. सो आई स्ट्रेन देम इन अ स्ट्रेनर. जो चाय पत्ती की छन्नी होती है उसमें स्ट्रेन करा, ऐसे स्कूप करके 2 चम्मच खा लिया. कितना लेना है, 1 चम्मच से ज़्यादा कोई सीड नहीं लेना है. 2 सीड्स हैं तो 2 चम्मच आपको लगेंगे बस. ठीक है, 1 टेबल स्पून ऑफ ईच. सो दैट इज़ द वे आई एम टेकिंग देम एंड दे आर च्यूएबल. तो आराम से चबा चबा के खा लिए. ओके, सो टाइमिंग्स क्या होने चाहिए सीड्स लेने? टाइमिंग्स आर एम्प्टी स्टमक. जब भी क्या बोलते हैं, सुबह आप फ्रेश होते हैं उसके बाद आपने ले लिया, जैसे पानी वानी पिया, फ्रेश हुए, आप उसके बाद सीड्स ले सकते हो खाना खाने से पहले. मैम एक बार और रिपीट करेंगे क्या, कौन सा मतलब बनाना और ये वाला, एक मतलब कैसे लिखा? एक सेकेंड ना. ओके, नाउ एवरीवन इज विजिबल. यस, अभी स्लाइड तो नहीं दिख रही है, मेरी स्क्रीन आ रही है ना पूरी? यस मैम। ओके, हाँ. तो जो मैं लेती हूँ, pumpkin, Ma'am, flaxseed. ma'am, one second. Just tell in English also, no? It'll be easier. Okay, I do. okay. So the flax seeds and the pumpkin seeds which I take them soaked overnight. You have to soak them in a one vessel. Then what I do, I put a one banana into it and grind it to make a smoothie out of it and drink it empty stomach. That is the best way and the tastier way to have that. If some days I don't have Water, banana, I ma'am? take. हाँ जी. पानी के साथ ही पीसना है बनाना और सीड्स दोनों, कि पानी को छान मिल्क के? मत ऐड करिएगा, पानी के साथ आप कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा. ओके ओके. The less you add the other things into it, na, so that's the better way to understand your stomach and to digest and break down your stomach the micronutrients which you need to balance your hormones naturally. Don't add dates, nuts and anything by yourself, है ना. Keep it minimal. And दूसरा चीज़ जो है, ज़्यादा आप क्वांटिटी मत रखिएगा. जस्ट हैव 1 टेबल स्पून ऑफ ईच सीड. ओके,
Now if you want to ask the question, raise the hands, otherwise थोड़ा सा कोई miss हो जाएगा, I will not know. Okay. Okay, we'll start with Sonali ji. Yes, Sonali ji. और मैम बनाना के अलावा और कौन से फ्रूट्स ले सकते हैं हम? That is my personal routine. I add a banana. You can add seasonal fruits according to the season, but I think banana एप्पल is. हाँ, you can add apple also, but apple का consistency थोड़ा सा I don't know कैसा होगा, but you can try. ओके मैम. Yes, Tanvi ji. मैम मेरे को ये पूछना था कि आई हैव अ किडनी स्टोन, तो किडनी स्टोन में क्या मैं ये मतलब सीड्स ले सकती हूँ ऐसे कि नहीं? Consult a doctor about it first, then you can. ओके. Yes, Komal ji. मैम मेरे को एक्ने की बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा. अभी ठीक हुआ था, बीच में फिर से एक्ने कंटिन्यू हो. स्वाति जी एक बार ट्राई करिएगा सीड साइकिलिंग, बिकॉज इट हेल्प्स विद हार्मोनल बैलेंस. हार्मोन्स जब इम्बैलेंस में रहते हैं तभी एक्ने का इशू भी आता है, सो इट माइट हेल्प यू. Just everyone just give yourself the seed cycling for next 3 months, है ना? एक्सक्यूज मी. और बैक पेन में भी, मतलब Didi ji, जॉइंट I am taking पेन questions one by one. Yes, Swati ji. ये जॉइंट पेन में भी हेल्पफुल रहेगा, मतलब. डेफिनेटली मैंने बताया ना, आयुर्वेद के हिसाब से जैसे वाता इम्बैलेंस होता है, पित्त इम्बैलेंस होता है, जो भी होता है आपके जॉइंट्स पे भी इफेक्ट करता है, सो आपको हेल्प करेगा ये. मैम there's a one question मैम. यस निधि जी. यस मैम, जैसे आप बता रहे हो कि सीड्स हमें 2 सीड्स 15 डेज पे लेने हैं जैसे, राइट? तो मैंने अभी रिसेंटली क्या स्टार्ट किया था कि सारे सीड्स में सॉक कर देती थी. जो आप स्मूथी बता रहे हो, 1 स्पून ईच सीड्स, सेसमी सीड्स, सनफ्लावर, पंपकिन एंड एलमंड्स, वो भी सब कुछ एलमंड्स भी, और नट्स जैसे आपने अभी मना किया जो नहीं करना है, तो मैं उसकी स्मूथी ले रही थी अभी तक. तो मुझे कंटिन्यू नहीं करनी है, यानी सिर्फ सीड्स का ही करना है अभी? कोशिश करिए कि नेक्स्ट 90 days जस्ट हैव सीड्स, बिकॉज क्या होता है जब हम सीड्स आर हाई इन हेल्दी फैट्स एंड कैलोरीज. इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट और तो आपका जो कैलोरी इंटेक होता है दैट मस्ट बी अंडर 1800 और 1600 फॉर अ विमेन, राइट? सो तो क्या होता है इनसे कि आप एक तो जो सीड, जितने सारे सीड्स हैं ये ऑलमोस्ट देट विल काउंट अराउंड 300 कैलोरीज, सीड्स ही सीड्स. उसके बाद आप नाश्ता भी करते हो, है ना? बनाना मिला के दे विल काउंट एज अ 300 ये कैलोरी. हाँ, एज ए ब्रेकफास्ट ही होता है ये मेरा, कि एक ब्रेकफास्ट कवर हो गया मेरा. अगर हाँ, वो तो स्मूथी अगर मैं आप ले रही हूँ ब्रेकफास्ट की ना, तरह ले रहे हो, हैव अ स्मूदी. यू कैन ऐड अदर नट्स ऑल्सो. अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो आफ्टर टेकिंग सीड्स, देन यू मस्ट अवॉइड एडिंग द एक्स्ट्रा नट्स इनटू इट. ओके. तो डेट्स भी जैसे डालती हूँ उसमें, अगर डेट्स नहीं तो फिग डाल देती हूँ सॉफ्ट की हुई. फिग भी हम यूज करते हैं? आप डाल सकते हो, बट कोशिश करिए सीड साइकिलिंग आप अलग रखो, फिर ये ब्रेकफास्ट स्मूदी आप अलग रखो, ये ओके मैम. एम्प्टी स्टमक आप अलग से रखो, है ना? ओके, थैंक यू मैम. एक एक करके मैं क्वेश्चंस ले रही हूँ, ठीक है? प्लीज अनम्यूट मत करिएगा, ऐसा हो सकता है काफ़ी कोई क्वेश्चंस भी वो आ जाए, सॉल्व हो जाए. यस तन्वी जी. तन्वी जी. ओके, आई गेस. यस कोमल जी. आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, म्यूट पे हो आप. जो वाटर जिसमें हम सोक करते हैं, डू वी हैव टू यूज दैट वाटर और वी हैव टू ड्रेन दैट, स्ट्रेन इट, द वाटर? गुड क्वेश्चन. यू हैव टू स्ट्रेन इट, बिकॉज उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं, तो आप उसको स्ट्रेन करके, वो ब्राउन पानी होता है जो हल्का सा स्ट्रेन करके, क्योंकि ज़्यादा इसीलिए मैंने नहीं कहा, इसलिए ज़्यादा ऐड मत करना, ताकि वो पानी बहुत ज़्यादा होता है, सीड्स हल्के होते हैं, वो सेसमे विल फ्लोट ऑन द सर्फेस, और इसीलिए आई स्ट्रेन इट इनटू द छन्नी, जैसे मैंने बताया था, ताकि And then वो. we have to wash it, like we have to wash the seeds You don't again, need to or wash it. You don't need to wash it. Just strain the excess water out of it. and ma'am, for the kids, like can we use these seed cycling for the kids?
डेफिनेटली मेल्स एंड किड्स कैन ऑल्सो डू दैट, क्योंकि उनके अंदर भी हॉर्मोन्स हैं, तो उनके लिए ऐसा है कि आपको फिक्स लेके नहीं चलना है, बट वही है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो सभी को चाहिए होते हैं वो फुलफिल हो जाते हैं। And ma'am, one more thing, the one word which you have used for this jeera, ajwain, soft, अग्नि you have मध्य, used agni. अग्नि मध्य को ठीक करते हैं। No, you have described it in a word that इन तीनों को एक word से आपने बोला था, this jeera, ajwain and soft in Ayurveda. जस्ट अ सेकेंड, मुझे चेक करना Maybe पड़ेगा। dosha. I think Deepan Pachan herb. हाँ, वही दीपन पाचन हर्ब्स, सॉरी, दीपन पाचन हर्ब्स। Okay, and ma'am, what are the timings to take these jeera, ajwain and soft? Like season, in which season? Soft is cooling potency, so you can take it in the summer season. And jeera, ajwain, jeera is a neutral, you can take it any time in any season, क्योंकि जीरा वैसे भी हम खाने में यूज़ करते ही हैं। एंड अजवाइन इज लिटिल हैव अ हायर पित्त पोटेंसी, सो आप इसको सर्दियों में यूज़ कर सकते Okay, thank you. एक्सक्यूज मी मैम, पोस्ट मीनोपॉज के लिए आप क्या बता सकते हैं? हैं। सेम चीज़ें हैं, मैंने बताया है शैलजा जी, जो मेनोपॉज फेज के थ्रू जा चुके हैं, दे कैन ऑल्सो कंटिन्यू विद द सीड साइक्लिंग। Hello. ओके मैम। Hello. यस रचना जी। Hello. यस रचना जी, बोलिए। जैसे मैडम मेरा 34 साल में यूट्रस निकल गया था, यूट्रस ओवरी दोनों और अपेंडिक्स तीनों एक साथ, चारों निकल गए थे। हम्म पर अब तो 54 लग जाएगा, मगर फिर भी फेस एकदम गर्म हो जाएगा, एकदम पसीने से लथपथ एकदम। रचना जी, यूट्रस चला गया है, बट जो बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन योर सेल्स, ईच एंड एवरी टिश्यू। सो तो बॉडी के जो हॉर्मोन्स हैं, दे आर स्टिल देयर, राइट? तो आपको अगर आप ये सीड साइक्लिंग करते हैं, थोड़ा सा बेनिफिट उससे भी मिलेगा, है ना? अगर कोई वैसा कंडीशन है, यू कैन ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर, राइट? हेलो मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस योगिता जी। मैम, मैं मेथी और कलौंजी का सोक करके लेती हूँ, तो मैं उसके साथ इन एडिशन ये वाले सीड्स ले सकती हूँ? हाँ जी योगिता जी, आप ले सकते हैं। ओके ओके, यस एक्सक्यूज मी विकी मैम। जी। हाँ मैम भावना। यस हेलो। यस यस हाँ यस, जी। बोलिए। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ना मेरी सिस्टर के लिए है। उनकी एज 27 है जी, 27 ईयर ओल्ड है वो। तो उनको ना मतलब पीरियड्स ना बहुत कम आ रहे हैं, कभी वन डे आते हैं, इरेगुलर हो रहे हैं, और शी इज अनमैरिड। तो मैम हम मतलब जैसे कि एलोपैथी भी करा रहे हैं, एलोपैथी ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं उनका, तो हम क्या करा सकते हैं? वो योगा भी कर रही है, तो मैम उसके लिए बताइए ना भावना प्लीज। जी, जो पीरियड्स में कमी आना होता है, दैट इज़ मेजरली बिकॉज ऑफ लो आयरन एंड विटामिन डी। तो आप उन्होंने अगर डॉक्टर ने तो बोला ही होगा टेस्ट कराने को, तो एक बार आप लेवल्स चेक करिए। हाँ जी। नहीं मैम, हमने वो टेस्ट भी कराए हैं उनके, और मेडिसिन भी ले रही है, चल रही है उनकी अभी भी। लेकिन फिर भी अभी एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अनमैरिड हो गए, और फिर कब पहले तो बहुत कम हो रहा था उनको, अभी लास्ट मंथ तो उनको सिर्फ वन डे का स्पॉट लगा है, वो मतलब आया ही नहीं है। तो हमें ये समझ नहीं आई कि मतलब क्या करे, कि मेडिसिन तो रेगुलर चल ही रही है उनकी, उनको भी योगा भी एक बार, करती है वो। भावना जी, उनको भी एक बार आप सीड साइक्लिंग सजेस्ट करिए, साथ में आयरन और विटामिन डी का एक बार टेस्ट देखिएगा। अगर डॉक्टर ने करवाया है, चेक करिए, लेवल्स कम है तो उस पे भी वर्क करिए, उसके भी सप्लीमेंट्स लीजिए, क्योंकि जो मेजर कॉज होता है पीरियड्स कम होने का, दैट इज़ बिकॉज ऑफ लो आयरन एंड विटामिन डी। जी मैम, एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज? मैं एक्चुअली मुझे लेट ज्वाइन कर पाया था नेटवर्क इशू की वजह से ना। सीड्स का स्ट्रीट साइड। जी मैम। ओके, तो जैसे उनको इरेगुलर साइकिल है,
तो वो मून साइकिल फॉलो कर सकते हैं। जिस दिन मून नहीं रहता है, अमावस्या की जो रात बोलते हैं जिसको, उस दिन इज द डे 1, नो मून डे, ठीक है। दिस द डे 1 टू स्टार्ट सीड साइक्लिंग। डे 1 से डे 14 तक, फुल मून डे तक, उनको फ्लैक्स और पंपकिन सीड लेने, जी जी ठीक है। और डे 15 से नेक्स्ट 14 डे तक, ठीक है, नेक्स्ट 28th डे तक, जी। ठीक है, अगले 14 दिन उनको सनफ्लावर और सेसमे सीड्स लेने। ओके मैम, अब फर्स्ट 15 डेज सनफ्लावर और पंपकिन सीड्स लेना है मैम, और फर्स्ट नेक्स्ट 15 डेज हाँ जी फर्स्ट में फ्लैक्स और सेसमे, सॉरी, फ्लैक्स और पंपकिन। हाँ जी, और लास्ट में वो सन सेसमी सीड्स और सनफ्लावर। सनफ्लावर, हाँ, करेक्ट। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस अनीता जी। गुड मॉर्निंग मैम। ये हेयर फॉल के लिए आप कौन सा सीड बोले? हेयर फॉल के लिए सारी सीड्स बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। आप सीड साइक्लिंग करके देखिए, स्पेसिफिक कोई नहीं, मेजरली ये है कि एक चीज़ आपके उसको वो नहीं करेगी, सपोर्ट नहीं करेगी, आपको होलिस्टिकली हर चीज़ पे काम करना पड़ेगा ना। सो एक तो सीड साइक्लिंग भी, दूसरा हेल्दी लाइफस्टाइल भी, और अगर बॉडी में कोई चीज़ डेफिशिएंट है उसके भी सप्लीमेंट्स आपको लेने पड़ेंगे। मैम, और आप जो सौंफ और पानी जो बोले आपने, तो रात को सोख करके सुबह पीना है क्या, मतलब थोड़ा उबाल के? राइट, रात को उबाल के रख दिया, सुबह पी लिया उसको। ये तो अगर चाय की तरह आप लेना चाहते हैं, हल्का सा ल्यूक वार्म गर्म करके फिर दोबारा ले सकते हैं, क्योंकि एक बार अच्छे से जब आप उबालेंगे पानी में, तो क्या होता है कि उसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आ जाती हैं पानी में। और रात भर अगर सोख करके रखेंगे, दैट इज़ अ बेस्ट थिंग। सुबह उसे पी लिया, गर्म करके या बिना गर्म करे। ओके मैम। मैम मैम, और जो सब सीड्स ना मैं हर दिन लेती हूँ, पर मतलब रोस्ट किया हुआ, तो वो कुछ काम नहीं देगा क्या मैम? आप जो बताए अभी तो करूंगी। रोस्ट करके क्या होता है, जितना आप रोस्ट करेंगे उसकी उतने कम प्रॉपर्टीज देगा, बहुत ही मिनिमल नंबर पे। ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते हो तो सोक करके। ओके मैम, थैंक Ma'am, यू। any side effects by taking the seeds, ma'am? There are no side effects. If you have any nut or seed allergy, तभी साइड इफेक्ट आपको होगा। मैम Thank कितना टीस्पून लेना है मैम? 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून? 1 टेबल स्पून, जो चम्मच होता है नॉर्मल खाने वाला, टीस्पून तो छोटा हो गया, 1 चम्मच दोनों। मैम प्रेगनेंसी ट्राई करते समय ले सकते हैं क्या मैम? हाँ जी, प्रेगनेंसी ट्राई करते समय सेसमे ले सकते हैं क्या? प्रेगनेंसी ट्राई करने के लिए जैसे मैंने बताया बहुत ही बढ़िया है। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तब तो प्लान करने से 3-4 महीने यू शुड डू सीड साइक्लिंग। ओके मैम, सेसमे इज गुड फॉर प्रेगनेंसी मैम। यस, गर्मी हो जाए। Ma'am, actually, to confirm, I'm asking it, ma'am. For the first 14 days, we have to take up the flax seed and pumpkin seed, and for the next 14 days, it should be sunflower and black sesame seeds, ma'am. Both to be soaked at night and in the morning. both sesame seeds can be taken. It depends on your preferability. Black are Okay, rich ma'am. in iron. Whatever may be the seed, it should be soaked at night, one spoon, and morning it should be made as a smoothie with either apple or a banana. Is it right, ma'am? Smoothie is for flax and pumpkin seed. Sesame and sunflower seed are easy to chew, so you can take them as it is. Just we have to soak it, filter the water, and we have to chew it as such. Second cycle. Yes. So this is the 4 seeds we have to take up continuously. Is it, ma'am? Yes. For post menstruation also, does it supports, ma'am? Definitely, absolutely. It supports your hormones, so Thank you. hormones are there. Thank you so much, ma'am. I'm actually outside, so I can't take up the notes. That's why I confirm. Sorry. It's okay. Thank you so much, ma'am. God bless you. Thank you. डोसा सेकेंड हाफ में क्या डोसा लगता है? हाँ जी, सेकेंड हाफ में कौन सा दोष आता है मैम? वात जो दोष। वात फर्स्ट में आके पित्त दोष होता है। पित्त दोष, यस। थैंक यू मैम। मैम यस दुर्गा जी। मैम मेरे इरेगुलर पीरियड्स है, तो मतलब पीरियड स्टार्ट होना या फिर अमावस्या से अपन स्टार्ट कर सकते हैं सीड साइकिलिंग?
हाँ जी, नो मून डे जिस दिन होता है अमावस्या, उस दिन आपको स्टार्ट करना है। और जिस दिन पूर्णमासी होगा, फुल मून डे, उस दिन आप उस दिन से उसके बाद से आप दूसरा फेज स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे जब चांद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, चांद का भी 28 डेज का साइकिल होता है, इट गोज लाइक आवर बॉडी, है ना। सो उसके हिसाब से आप मुझे चल सकते हाँ पीसीओएस है और इरेगुलर पीरियड्स है मैम। हाँ, तो ये डेफिनेटली दुर्गा जी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ट्राई करके देखिए सीड साइकिल। ओके थैंक यू मैम। ओके, यस स्वीटी जी। एक्सक्यूज मी मैम। बाय मैम। मैम एक्चुअली माय क्वेश्चन वाज रेलेवेंट, जैसे मेरा भी इरेगुलर पीरियड्स है, तो शुड आई हैव टू स्टार्ट वंस आई गेट द पीरियड्स, और जैसे अभी आपने बताया ना कि वी कैन स्टार्ट फ्रॉम अमावस्या, तो पीरियड का नहीं वेट करके भी हम अमावस की दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली। वन मोर थिंग, लाइक अगर हम फास्टिंग करते हैं तो ऐसा कुछ है कि एक दो दिन स्किप हो गए तो चलता है कि वी हैव टू कंप्लीटली टेक इट गॉड इन 14 डेज? आई थिंक फास्टिंग में सीड्स कैन बी टेकन, ऐसा नहीं है। अगर आप बिल्कुल ही कुछ नहीं खाते हो फास्ट पे, एक दो दिन चलेगा, बट कोशिश करिए कि टू बी कंसिस्टेंट, है ना। और यस, इरेगुलर पीरियड्स और पीसीओएस जिनको है, वो मून साइकिल को फॉलो करिए, क्योंकि फिक्स डेट नहीं होता है ना पीरियड्स का, तो आप कब तक वेट करेंगे। तो दैट इज अ बेस्ट वे टू फॉलो द मून साइकिल। मतलब अमावस्या फिर पूनम मैम? अमावस अमावस्या इज योर डे 1। ठीक है, ओके। डे 1 से डे 14 फुल मून डे तक आपको फ्लैक्स और पंपकिन लेना है। फिर पूर्णिमासी के बाद डे 15 से और डे 28 या 29 तक आपको सनफ्लावर और सेसमे सीड लेना है। ओके, और और मैं अगर जैसे मैं ना ब्लैक किशमिश भी लेती हूँ, तो उसको आफ्टर 3 आवर के बाद ले सकती हूँ ना? सॉरी, ब्लैक मैं समझ किशमिश, नहीं। सोक्ड ब्लैक किशमिश रहती है ना, ब्लैक रेजिन्स। अच्छा, ब्लैक रेजिन्स, हाँ हाँ, वो आप बाद में लीजिए, पहले आप ये सीड्स ले लीजिए, उसके मतलब 15 मिनट 20 मिनट बाद आप, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए एम्प्टी स्टमक ना बॉडी पे वर्क करने का। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। एक्सक्यूज मी मैम। तो ये हम अभी स्टार्ट नहीं कर सकते मैम आज से? आज से अभी आपका अगर पीरियड का जो फर्स्ट फेज चल रहा है तो आप कर सकते हो। और अगर आप पीरियड्स को ट्रैक कर रहे हो रेगुलरली पहले से, कि आपका पहले दिन से 14 डे के बीच में वाला ड्यूरेशन है, तो यू कैन स्टार्ट राइट अवे। स्टार्ट विद ये फर्स्ट फेज में जो हम लेते हैं फ्लैक्स और पम्पकिन। और अगर आप पीरियड के सेकेंड फेज में हो, ल्यूथल फेज में हो, आफ्टर डे 15 और मेरा भी कल ही पीरियड ओवर हुए हैं, कल ही पीरियड ओवर हुए हैं। कल ही ओवर हुए हैं, तो आपका मतलब अभी फर्स्ट फेज चालू हो गया है। पंपकिन और फ्लैक्स सीड्स ओके आप शुरू कर सकते ओके, सो आई कैन स्टॉप टुडे नाइट, हो। टुनाइट हाँ, एक्चुअली। या टुनाइट ओके, ओनली, मतलब आज सोक करा, कल से आप स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू मैम, मैम थैंक यू। एक्सक्यूज यस मी मैम। यस यस कोमल जी। मैम फॉर द किड्स, लाइक उनके लिए कब से स्टार्ट करें, लाइक एंड हाउ टू स्टार्ट इट? किड्स किड्स के लिए तो आप कभी भी उनको जो ये सीड्स हैं उनके स्नैक्स में भी आप दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है उनको आप जैसे आप फॉलो कर रहे हो वैसे दो। यू कैन ऐड इट इन द स्मूदीज फॉर देम और इन द सैलेड्स, है ना। तो थोड़े थोड़े ये सीड्स हैं, ये सोक्ड ही आप उनको ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या बोलते हैं, अपने साथ भी आप उनको दे सकते हो मॉर्निंग में ना, कि थोड़ा सा च्यू कर लें जैसे आप लोगे, ऐसा मैम उन। डायरेक्टली, लाइक विदाउट स्मूदी आई कैन गिव देम डायरेक्टली? यस यस, डायरेक्टली यू कैन गिव देम। उनके लिए एंड ऐसा मैम, कोई साइकिल का रूल नहीं है कि इस टाइम से इस ड्यूरेशन तक कोई। मैम वन मोर थिंग, व्हाट अबाउट द सब्जा सीड, चिया सीड्स? कैन Chia seeds are good. Chia seeds are good. Sabja seeds are also good in summers. तो इनको भी अगर आप लेते हो तो कोशिश करिए कि हैव अ गैप बिटवीन द सीड साइक्लिंग रूटीन विच यू हैव एंड जो आप पहले से फॉलो कर रहे हो वो चीज़ें। And ma'am, one more thing, like I'm taking coriander seeds for this thyroid problem. So, ma'am, उनको कैसे लेना? I just soak them in water and then morning Coriander में। is also good for digestion. What you can do, you can have a coriander water in a morning. Then उसके कुछ टाइम बाद आप जैसे प्रैक्टिस करा सुबह मॉर्निंग में, उसके बाद सीड साइक्लिंग वाले सीड्स ले लिए। जैसे मैंने वो बताए ही दीपन पाचन हर्ब्स जो बताए थे, उसमें आप कोरिएंडर भी ले सकते हो, कोरिएंडर वाटर यूज़ कर सकते हो। मैम कोरिएंडर को भी रात में लाइक बॉईल करके देन मॉर्निंग में स्ट्रेन करके लेना है दैट इज़ या? द बेस्ट वे टू टेक दीज दीपन पाचन हर्ब्स जो हैं, जितने भी ये हर्ब्स होते हैं, अगर आप इनको रात को बॉईल करके रख दो, है ना, एक बॉटल में भर के रख दिया, फिर आप इसको अगर मॉर्निंग में लेते हो तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं पानी में।
अच्छा मैम एंड मैम सब्जा सीड्स और चिया सीड्स में क्या ज्यादा डिफरेंस होता है, लाइक व्हाट आर द डिफरेंस, आई डोंट नो। Chia seeds are little heavy and little on the pitta dominant side, थोड़े से गर्म होते हैं. और सब्जा सीड्स हैव अ शीतल प्रॉपर्टी. दे आर गुड इफ़ यू हैव हाई पित्ता और जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है ना, बॉडी में हीट ज़्यादा रहता है. समर्स में आप सब्जा सीड्स ज़्यादा प्रेफर करें. समर्स में सब्जा सीड्स, मैम इनको दोनों को सोक करना होता है? डेफिनेटली जितने भी, मैं तो बोलती हूँ जो भी सीड्स नट्स आप खाते हो उनको सोक करके ही खाओ. डोंट हैव देम लाइक ड्राई और रोस्ट और वैसे ड्राई जो नट्स होते हैं इवन वो. कैशू नट्स? डेफिनेटली कैश्यू भी. कैशू भी? कैश्यू तो जल्दी से सोक कर लेता है पानी को, तो अगर उसे आप खाने से 15-20 मिनट या आधे घंटे का भी टाइम देते हैं, जैसे ग्रेवी वगैरह बनाते हैं खाने में भी, तो सोक करके रखें तब बनाते हैं तो ज़्यादा रिच और ज़्यादा एब्जॉर्बिंग रहता है, वो डाइजेशन में भी इजी रहता है. एंड मैम ये सब्जा एंड चिया सीड्स इनको कितनी देर तक सोक करना पड़ता है? ओवरनाइट, एवरीथिंग बोथ ओवरनाइट. ओवरनाइट. ओके, थैंक यू. मैम मैम पानी बाहर डाल देना क्या मैम? जो पानी में सोक करते हैं उसको पानी यूज नहीं करना, बाहर डाल देना. हाँ, जो हम नट्स यूज़ कर रहे हैं सीड साइक्लिंग के, उसका जो पानी है वो स्ट्रेन करके तब आप यूज़ करिए उन्हें. वो पीना नहीं पानी को. नहीं, उस पानी को नहीं पीना है. उसमें तो वो जिसके उसके जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे रहेंगे ना, तो उस पानी को नहीं पीना है. जैसे हम बादाम भिगोते हैं, बादाम के पानी को बाहर फेंक देते हैं, फिर उस बादाम को वैसे ही खाते हैं ना, तो उसी तरीके से. ओके मैम. मैम तो उसमें तो Ma'am, to एसेंस ऑफ reduce body heat, ma'am, which one to prefer, ma'am, to reduce body heat? To reduce body heat, it depends on your cycle. As I said, na, body heat is dominant in the pitta phase. So body heat is the pitta, which is dominant in the follicular phase, first phase of the cycle. So वहाँ पे flax and pumpkin seeds are good. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, without grinding, we can have it, right? No, ma'am. By chewing also we can have it, right? Is it necessary to grind and make it as a paste? Meena ji, if you will try to chew flaxseed, you would not be able to do that. Flax seeds Okay. are very slippery, so you have to grind them to have them. Okay. Okay, ma'am. Yeah. Okay. Yes, Meenal ji. मैम Hi, Anjali. I just have one question. See, during, I'm experiencing perimenopausal symptoms. So during the end of my, follicular phase to the, when the beginning of the luteal phase, I do experience a lot of constipation. So I just have one question that if I want to start with deepen Pachan herbs, so can I take ajwain and coriander seed water first and then follow the seed cycle? Right now, I think you are living in a Mumbai, right? Right. So the weather is little humid and hot. So go with the coriander or sauf water. Okay. Okay. Have the ajwain water in winters, okay? Okay. Okay. You can That's do what I that. just, because just to ease that constipation thing, it's for that 15 days, it's very irritable thing. Like, Right, right. I can understand. okay. Try to have fiber rich food. जितना fiber हो. अगर No, I ज़्यादा try everything. I drink a lot of water. Fiber intake is also good, but still. Right. So I'll try It with this happens thing. because your body is transitioning through this phase. It happens. You Correct. can try these Uh, Deepan Pachan herbs. Go with the sauf and coriander water. You can mix them also. okay. You can take them separately if Okay. you don't find the taste good. Okay. 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 Thank you so much. Yes, Anjana ji. मैम देखिए, आप वो जो फ्लैक्स सीड्स पंकिन सीड्स आप जो बोले उसको पानी में भिगोना है और पानी के साथ ही बनाना को पीसना है ना? जो फ्लैक्स सीड्स और पंकिन सीड है उसका पानी थोड़ा स्टिकी हो जाएगा, तो उसको आप स्ट्रेन इतना नहीं कर पाएंगे, तो उसी पानी में आप पीस सकते हैं. तो कोशिश अच्छा. करिए कि जो पानी आप यूज़ करेंगे वो बहुत कम हो, मतलब उनको सिर्फ डुबोने लायक ओके. पानी यूज़ करें, उन्हें हाँ सोख के. हाँ. और जो सनफ्लावर जो इसमें सीड्स बोले उसको पानी को पूरा छान देना है और खाना है हाँ, बस सीड्स को ना. तब खाएं सीड्स तो को तब. मैम ये जैसे मदर और डॉटर हम दोनों का ना पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं मैम, मतलब 22 फिर 25 में, तो ये मतलब ये साइकिलिंग यूज कर मतलब स्टार्ट कर लो क्या मैम? अंजना जी, तब आप मून साइकिल फॉलो कर सकते हैं, है ना.
मून के साथ चल सकते हैं। अच्छा, मून साइकिल। ये वाला 1 to 14 डेज जो फ्लेक्स और पंपकिन और 15 to 20 जो सनफ्लावर से वो यूज नहीं करूँ मैम, वो नहीं करूँ। हाँ, अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स है, जैसे मैंने बताया, अगर पीरियड्स शुरू होने के 25th या 24th डे में आपको दूसरा पीरियड आ रहा है, दैट कम्स अंडर द इरेगुलर पीरियड, है ना। तो इरेगुलर पीरियड है जिनको, तो वो दे मस्ट फॉलो द मून साइकिल। आप मून साइकिल फॉलो करिए। ओके मैम, थैंक यू। ओके, हेलो मैम। यस यस रमन जी। मैम मेरा एक बात पूछना था। ये हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से हो रहा है कि मुझे नहीं पता, आपको पूछना है। मेरे पिछले दो दिन से 10 डेज से मेरा पेशाब करने में जलन हो रहा है। ये हम्बर क्यों हो रहा है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मे बी बॉडी में जो शुगर हो, शुगर के लेवल्स प्रॉपर ना हो, वो भी हो सकता है। और दूसरा, पानी का इंटेक अगर आपका कम है तब भी ये होता है। और दूसरा पानी तो मैंने बहुत ही लिया, मेडिसिन अब तक कोई भी मेडिसिन नहीं लिया, 86 वाटर ले रही हूँ। एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करिएगा। मे बी अगर यूटीआई अगर हो, यूरिनरी ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन अगर कुछ हो, तो उसकी वजह से भी होता है। हाँ। तो यूटीआई है तो आप आज ही चेक कराएं, मैं बोलूँगी। इसको ज़्यादा वेट मत करिए, लेकिन वो थोड़ा थी तो कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू, टेक मैम, केयर। यस अंशिका जी। अगर हम मतलब वो फ्लैक्स सीड्स ना ले, खाली पंपकिन सीड्स ले ले, तो ऐसे चल जाएगा? नहीं अंशिका जी, दोनों सीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लैक्स सीड्स तो बहुत ही पावरफुल सीड है, उसको आप इंक्लूड करिए। मतलब बनाना वैसे वो ले नहीं सकते, बनाना मैं अवॉइड करना चाह रही हूँ, वेट गेन हो जाएगा ना तो लेने इसलिए। का कोई रीज़न है कुछ, मतलब कोई दिक्कत है? मतलब बनाना मैं अवॉइड करना चाह रही हूँ कि वेट हाँ, गेन तो ना हो जाए इसलिए। बनाना अगर आप अवॉइड करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया था, कभी कभी मेरे पास भी जैसे बनाना नहीं है, हर रोज़ नहीं होता है, तो मैं जरा पानी में उसको ऐसे ढक्कन लगा के ग्राइंड करा, छोटा सा जो जार होता है उसमें ग्राइंड करा, क्योंकि इसमें इजीली हो जाता है थोड़ी सी चीज़ ना, तो उसको ग्राइंड करा, वैसे ही उस पानी के साथ पी लिया, एक घूंट में वो पूरा पिया जाता है। अच्छा अच्छा, और पंपकिन सीड्स तो ऐसे भी खाए जाते हैं, वो ऐसे ही खा लो। नहीं, पंपकिन सीड अगर आप करना चाहते हो तो अलग से पंपकिन वो कर दिया, क्योंकि क्या होता है एक एक टेबल स्पून है, वो छोटी सी एक टेबल स्पून ग्राइंड नहीं होगा इतना, तो पंपकिन के साथ अगर आप ग्राइंड करोगे तो इजीली ग्राइंड हो जाएगा दोनों चीज़ें ना, तो दोनों को एक साथ ग्राइंड अच्छा करके अच्छा, फिर उसे पी लिए। ठीक है। वरना अभी तक मैं मतलब कभी कभी पंपकिन ले लेती थी ऐसे, क्योंकि वो ठीक लगते हैं टेस्ट बट में। आप कोशिश करिए दोनों लीजिए, दोनों को ग्राइंड करके एक साथ तब लीजिए, ठीक है। और सनफ्लावर और सेसम तो ऐसे ही खा सकते हैं, है ना? ऐसे ही खा सकते हैं, हाँ। एक्सक्यूज मी ओके, मैम, थैंक यू। इससे यस, मेनोपॉज वेट गेन होता जा रहा है तो शैलजा जी, आई थिंक योर माइक इज ऑफ। सॉरी मैम, पोस्ट मेनोपॉज के बाद वेट गेन हो रहा है तो उसके भी वर्क करेंगे क्या? शैलजा जी, अभी तो आज हम सीड साइकिलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। वेट गेन होना भी हार्मोन्स का काफ़ी रोल होता है वो हाँ, पीछे। यही पूछना चाह रहे हैं, मतलब जैसे सीड्स हम इसी तरीके से लेंगे, किस वे में लेंगे? इसी वे में अमावस लीजिए, और कोशिश करिए कि इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड मत करिए। अपने डाइट पे अच्छा ध्यान दीजिए, क्योंकि सीड्स ही सीड्स लेने से सब चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आपको लाइफस्टाइल भी सुधारनी होगी। 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, प्रॉपर डेली योगा अभ्यास या जो भी आप करते हैं वो करिए, स्ट्रेस लेवल कम करिए बॉडी का, आपको धीरे धीरे सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओके मैम, सीड्स का मतलब ऐसे ही शुरू करना है अमावस्या से और 15 हाँ डेज? हाँ हाँ, जो इरेगुलर साइकिल मेनोपॉज है वो सारे मून साइकिल के साथ शुरू कर सकते। ओके मैम, थैंक यू। यस दीप्ति जी। मैम, ये जो सीड साइकिलिंग है ना, इसमें और ब्रेकफास्ट में कितना डिफरेंस होना चाहिए? क्योंकि मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं सीड साइकिलिंग कर रही हूँ आई थिंक 1 महीने से, बट मैं क्या करती हूँ, ब्रेकफास्ट शुरू करने से पहले ही उसको फ्रूट्स के साथ मिक्स करके पहले वो लेती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ, तो मैं इकट्ठा ही कर लेती हूँ सब कुछ। को दीप्ति जी, इकट्ठा से ये होता है ना, बॉडी में जैसे
पेट में आप बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं, अब हर चीज़ से वो हाँ एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ा स्टमक भी वो हो जाता है कि वो कुछ कुछ चीज़ें स्किप कर देता है, छोड़ देता है कि चलो कोई बात नहीं। तो उसको कंसंट्रेट करने के लिए सिर्फ आपके सीड्स पे, तो आप सीड्स और मील के बीच में 20 मिनट्स लगते हैं, थोड़ा सा गैप रखिए, मिनिमम 20 मिनट, मैक्सिमम अगर कोशिश कर सकते हैं फर्स्ट थिंग इन अ मॉर्निंग हैव अ वाटर, गेट इन फ्रेशन अप, उसके बाद आप सीड्स ले लीजिए और ब्रेकफास्ट को 1 घंटे बाद करिए। ओके। एंड मैम अगर ड्राई फ्रूट्स भी लेने हो जैसे सोक्ड आलमंड्स और वॉलनट लेने ये हो आप तो ये कब? ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं, ये ये जैसे ब्रेकफास्ट। खाना, हाँ ब्रेकफास्ट के साथ ले लीजिए। ठीक है। मैम एक और चीज़, एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू कंसीव फॉर माय सेकंड बेबी। सो मेरा ना वो एंड्रोमेट्रियम थिकनेस ना थोड़ा कम आता है, मतलब अभी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, तो सीड साइकिलिंग हेल्प करेगा राइट उसमें? डेफिनेटली डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया कि जो आपके सपोर्ट करते हैं ये सीड्स आपके यूट्रिन लाइनिंग को डेवलप करने के लिए, तो डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक्स। यस अंजना जी। मैम मॉर्निंग में सोप वाटर लेके उसके बाद फ्रेश होके सीड्स ले सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस स्वीटी जी, अंजना जी? ये सीड्स का क्लास और एक बार करवाइए मैम, हाँ जी, बीच बीच में करवाते रहिएगा मैम। सीड्स का तो आज मैंने बता दिया है, बट हाँ मैं कोशिश करूँगी कि कुछ और नया जो चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं, तो वो सेशंस मैं कोशिश करूँगी लाने की। चलिए, थैंक यू मैम। ओके, बहुत अच्छा लगा आप सभी के ओपिनियंस जान के और आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लवली क्वेश्चंस एंड योर लवली एनर्जी टुडे. I hope this session brought you and gave you clarity and inspiration to start your own seed cycling journey. So let's continue making small mindful choices और अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करते हैं जो हमें और हेल्दी बनाते हैं, क्योंकि जब हम हेल्दी रहेंगे हमारे आसपास के लोग खुद ही हेल्दी हो जाएंगे, है ना? हाँ, सो अभी इस सेशन को एंड करने के लिए एक बार ओम और शांति पाठ करें। एवरीवन क्लोज योर आईज, आँखें बंद। Take in deep breath. Inhale. Shanti, Shanti, Shanti. Bow your head down towards your palm. दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे. Place your both palms over your eyes, on your forehead, your neck, your chest, your lower back, and both thighs and knees. Namaskaram. Thank you everyone for joining in today. I hope you enjoyed your class. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Nice Thank you, session, ma'am. ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. मैम Thank you, इसे ma'am. आप बाय कर दीजिए, ये मुझे बोल रही थी, मैम बाय नहीं कर रही है। बाय बाय। क्या नाम है आपका? बता दो, आरवी। आरवी नाम है मैम। बाय आरवी। बाय कर दो। बाय। थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलो। वेलकम।